Okay, so welcome again. So till now we have completed our WhatsApp business profile, how to set up the business profile, then your banner. We have seen your banner, uh, logo, then your business description about your business, your you have to set your email, you have to set your working hours. If you are not working 24/7, then you must have a business hours set. So it will set right expectation to your clients that you are going to give them reply in business hours. So Right. that is what we have done in the previous session. Then we saw how we can send messages in bulk, right? So Right. we went to prosender.in, then we connected our WhatsApp device with the prosender system. Then we saw how to, there is some disturbance with your mic. Satish, can you please switch off your mic for some time? Yeah, thank you. या सो वी हैव सीन कि किस तरह से हमें कैंपेन सेटअप करना है, राइट? हाउ टू सेटअप अ कैंपेन, हाउ टू रेंडमाइज अ मैसेज so that a single campaign sends different kind of messages to different people, right? अलग अलग लोगों को एक ही कैंपेन से अलग अलग मैसेजेस किस तरह से करना है वो हमने देखा। रेंडमाइजेशन किस तरह से लाना है, वी हैव टू एंटर द कर्ली ब्रैकेट, then inside this curly bracket we have to write synonyms of a word like trial, test, demo, like, okay, so one person will get a message where the word trial is used, another person will get a message where the word demo is used, another person will get a message where the word test is used। ओके, सो इस तरह से हम लोगों को डिफरेंशिएशन लाना है हर मैसेज के अंदर। And I also suggested that do not message on a large list. Okay, keep your list smaller because जब आप शुरू करेंगे आपके पास में इतना बैंडविड्थ नहीं होगा, आपका नंबर नया होगा। ओके, और इससे पहले आपने इतने मैसेज कभी किए नहीं होंगे, राइट? तो आपका नंबर बैन ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है कि बहुत बड़ी लिस्ट के ऊपर आपको मैसेज नहीं करना है। ओके, सेकेंडली, लेट्स से इफ यू वांट टू मैसेज ऑन अ लिस्ट विच हैज 100 यूनिक नंबर्स, तो आपको 100 नंबर्स नहीं रखना है लिस्ट के अंदर। ब्रेक इट इन 5 डिफरेंट लिस्ट और अलग अलग टाइम पे आप उसका मैसेज शेड्यूल कर दो, तो आप 100 लोगों को मैसेज भेज पाओगे। ओके, और टाइम गैप हमको रखना है, ये हम लोगों ने कल देखा। आज हम लोग बात करेंगे और आज हम लोग देखेंगे कुछ यूनिक स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। दिस वाज नॉर्मल। ओके, अब इसके आगे की चीजें देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ओके, सो गिव मी अ मोमेंट, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। Yes, yes. ओके, तो स्क्रीन नजर आ रही है आपको, बिल्कुल क्लियर, विजिबल? यस, ओके। So let's continue. So this is our dashboard. Whenever you log into the system, you reach directly to this dashboard. Now, लॉग इन करने के बाद में मैंने आपको बताया you have to go to WhatsApp ऑप्शन,
where you will get all these options like report, profile, bulk messaging, autoresponder, chatbot, export participants, and etc. etc. Okay. Now, today we will discuss about the autoresponders. Are you guys with me so far? Shall I start? Yes, ओके। yes, ओके। तो कल हम लोगों ने देखा था, अ, जब हम लोगों ने बिजनेस प्रोफाइल सेटअप किया था व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल के अंदर, जब हम लोग थे तब कल मैंने आपको सेटिंग्स के अंदर बताया था दैट यू हैव टू डिफरेंट सेटिंग्स इन व्हाट्सएप बिजनेस. इफ यू आर यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस यू हैव टू डिफरेंट सेटिंग. वन इज कॉल्ड welcome message and second one is called away message. Do you remember that? Yes. yes, Yeah. Okay, so one was welcome message, second one was away message, but those settings were off in my on my profile. Okay, और मैंने आपको बोला था कि मैंने इसको स्पेसिफिकली टर्न ऑफ किया हुआ है because I do not use these settings, because I have a much better tool available which can send better messages than this one. ओके. तो वो क्या है, वो सेटिंग हम लोग आज देखेंगे. तो आप लोगों ने भी आपके बिजनेस प्रोफाइल के अंदर, बिकॉज राइट नाउ यू आर ऑन द prosender.in एंड यू आर यूजिंग दिस टूल नाउ, तो आपको वो जो सेटिंग्स है जो कल हम लोगों ने देखी थी, वेलकम मैसेज एंड अवे मैसेज, यू नीड टू टर्न इट ऑफ. ओके, उसको बंद कर दो आप. वो हमारे अब किसी काम का नहीं है. ओके. क्यों काम का नहीं है? क्योंकि अब हम लोग आज जो देखेंगे उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो वेलकम मैसेज है या जो अवे मैसेज है वो आप किस तरह से मॉडिफाई करेंगे और उसके अंदर क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हो. राइट. सो व्हेन यू कम टू द ऑटो रेस्पॉन्डर ऑप्शन, ओके, ऑटो रेस्पॉन्डर पे आने के बाद में अगेन यू विल गेट दिस ड्रॉप डाउन and it says select a WhatsApp account. Okay, so since I have three number connected with this tool, it shows me three different profile. Right now, I will use this one. Okay, तो मैंने एक प्रोफाइल चूज किया. प्रोफाइल चूज करने के बाद में यहाँ पे आपको पूछा है, यहाँ पे आपको कुछ बटन्स है जिसको आपको एनेबल करना है, लाइक स्टेटस एनेबल. स्टेटस एनेबल होगा तब ये ऑटो रिस्पॉन्डर वर्क करेगा. ऑटो रिस्पॉन्डर का मतलब क्या है कि जब भी कोई बंदा आपके प्रोफाइल पे आता है, आपको मैसेज करता है, ही और शी शुड गेट इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, whether you are whether it is your working hours or whether you are इन ऑफ वर्किंग आवर. तो जो भी हो, आपका वर्किंग आवर चालू है नहीं है, इन एनी केस योर कस्टमर, योर क्लाइंट शुड गेट अ प्रॉपर रिप्लाई फ्रॉम योर साइड. ओके, आपकी तरफ से एक रिप्लाई जाना चाहिए. स्टेटस हमेशा हम लोग एनेबल रखेंगे. एनेबल रखेंगे तो ही ये चलेगा, ऑब्वियस सी बात है. उसके बाद में है एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है यहाँ पे, विच से सेंट टू, और तीन ऑप्शन है यहाँ पे. फर्स्ट है ऑल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप. तीनों को मैं आराम से समझा देता हूं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के अंदर. व्हाट दीज सेटिंग्स आर. इंडिविजुअल के ऊपर आप देखोगे कि मेरा बाय डिफॉल्ट मैंने इंडिविजुअल रखा है. व्हाई आई हैव सेट इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का मतलब है जब कोई इंडिविजुअल, जब कोई पर्सन आपको रिप्लाई करता है, वन टू वन आपको मैसेज करता है. ओके. कोई बंदा आया, आपको उसने व्हाट्सएप किया, यानी कि आपको पर्सनली आपको मैसेज किया उसने, उस वक्त आप उसको रिप्लाई देंगे. राइट. दैट ऑप्शन इज कॉल्ड इंडिविजुअल ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे ग्रुप. नाउ यू मस्ट बी पार्टिसिपेंट इन डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स. ओके, कई सारे ग्रुप्स होंगे आपके पास में. और क्या होगा कि अगर कोई बंदा ग्रुप के अंदर रिप्लाई करता है या ग्रुप के अंदर कोई मैसेज डालता है, एंड सिंस यू आर द पार्टिसिपेंट ऑफ दैट ग्रुप, दिस ऑटो रेस्पॉन्डर इज गोइंग टू गिव देम अ रिप्लाई. ओके. तो अगर कोई बंदा ग्रुप के अंदर भी मैसेज करता है और आप चाहते हो कि कोई ग्रुप के अंदर मैसेज करे तब भी मैं उसको रिप्लाई दूं, उस कंडीशन में आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं.
और अगर आप चाहते हैं कि दोनों कंडीशन में मैं उसको रिप्लाई करूँ, या वो मुझको पर्सनली मैसेज भेजता है या वो मेरे ग्रुप के अंदर मैसेज भेजता है, दोनों कंडीशन में मैं उसको रिप्लाई करूँ, तो आपको ऑप्शन चूज करना है ऑल। ओके। बट जनरली आई अवॉइड यूजिंग ग्रुप ऑप्शन, बिकॉज ग्रुप के अंदर काफी सारे लोग हैं, काफी सारी बातें हो रही है, बार बार कोई बंदा आपको बार बार कोई बंदा ग्रुप के अंदर मैसेज कर रहा है एंड यू आर गिविंग देम रिप्लाई, तो वो थोड़ा सा बम्बार्डिंग हो जाता है। ओके, बार बार आप उसको रिप्लाई दे रहे हो, सो इट इज काइंड ऑफ बम्बार्डिंग। तो इसके लिए, इसको अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, एंड आई ऑल्सो पर्सनली यूज दिस ऑप्शन इंडिविजुअल। जब कोई मुझे स्पेसिफिकली मैसेज करेगा तभी मैं उसको रिप्लाई दूंगा, ग्रुप के अंदर मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। ओके। सो दीज आर द टू ऑप्शन, एनेबल एंड इंडिविजुअल। Again, the third option is text and media, button and list. Button and list, we are not interested. It will not work because of the restrictions from Meta. So हमें हमेशा चूज करना है टेक्स्ट एंड मीडिया, एंड बाय डिफॉल्ट इट इज सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड मीडिया। बाय डिफॉल्ट ये इसके ऊपर ही रहेगा, तो आपको यही सिलेक्ट करना है। देन कम्स एन ऑप्शन ऑफ मीडिया फाइल। ओके। अब ऑटो रिस्पॉन्डर आप भेज रहे हो, बराबर। ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर हमारे पास में व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल के अंदर भी ऑप्शन था, जिसको हम लोगों ने जिसका नाम व्हाट्सएप ने क्या रखा है, वेलकम मैसेज और अवे मैसेज, राइट। लेकिन वहां पे आपके पास में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पे आप मीडिया अटैच कर सको। यू कैन जस्ट सिंपली रिप्लाई यूजिंग अ टेक्स्ट मैसेज। कोई बंदा आपके प्रोफाइल पे आता है, आपको मैसेज करता है, यू कैन रिप्लाई देम इन टेक्स्ट। ओके, और इसी के लिए उसका यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेट्स से इफ somebody comes to your profile, they messages you and you want to give them a reply, और इस रिप्लाई के अंदर आप चाहते हो कि मैं अपनी कंपनी का ब्रोशर सेंड कर दूं, या मैं अपने प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का ब्रोशर सेंड कर दूं, या मेरे कंपनी का कॉरपोरेट वीडियो, कॉरपोरेट प्रोफाइल में उसके साथ में शेयर करूं, या इस तरह का कोई इमेज या प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी, इस तरह की कोई चीज मैं उसके साथ में शेयर करूं। ओके, सो दिस इज पॉसिबल यूजिंग दिस टूल। तो आपको करना क्या है, अगेन ये ऑप्शन हम लोगों ने पहले भी देखा है। सो लेट्स से इफ यू वांट टू सेंड अ कॉर्पोरेट वीडियो ऑफ योर कंपनी, और इफ यू वांट टू सेंड ब्रोशर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट यू आर डीलिंग इन। ओके, तो आपको क्या करना है, click on this upload icon and choose your brochure or your image or media file or whatever you are using, okay, to make them aware about your business, कि आप करते क्या हो। ठीक है, वो आपने यहाँ पे आप अटैच करेंगे। बट राइट नाउ यू कैन सी दैट वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ मीडिया, because I am okay with it. We do not want to give them any kind of media. We do not want to give them any kind of brochure. We just want them to chat with us. Okay. हम चाहते हैं कि बस वो हमसे बात करें। अभी हम उसको किसी भी तरह का मीडिया नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए यू कैन सी यहाँ पे जो मेरा मीडिया फाइल है वो ब्लैंक है। बट इफ यू वांट टू सेंड, यू कैन सेंड। अब इसके बाद में जो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैप्शन। अगेन, कैप्शन कैसे लिखना है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब आप ऑटो रिप्लाई करते हो, यानी कि ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू जब आप ऑटो रिप्लाई कर रहे हो अपने कस्टमर को, तो उस मैसेज के अंदर आई वुड सजेस्ट यू टू यूज कॉल टू एक्शन। ओके, आपको ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर, ऑटो रिप्लाई के अंदर आपको किसी तरह का कॉल टू एक्शन देना है, कोई एक्शन। आप अपने कस्टमर से चाहेंगे कि वो किसी तरह का एक्शन ले आपके मैसेज के ऊपर। यू आर नॉट जस्ट सेंडिंग एनी रिप्लाई लाइक हे वी आर अनअवेलेबल, और हाई वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ एंड आर एग्जीक्यूटिव विल कॉन्टेक्ट यू। इस तरह से मैसेज हम नहीं भेज रहे हैं। अब अगर आप हमारे बिजनेस के अंदर देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी आर
एडवर्टाइजिंग मोर फॉर दिस कोर्स लिंक्डइन। ओके, तो लिंक्डइन के कोर्स के लिए अगर हम लोग बहुत एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे टच में आते हैं, जो हमसे लिंक्डइन के बारे में काफी सवाल करते हैं और व्हाट्सएप के बारे में काफी सवाल करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, सी आर फ्लो, कि हम लोगों ने क्या किया है, सो इन द सिमिलर मैनर यू हैव टू क्रिएट योर ओन फ्लो। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ऑटो रिप्लाई जो हमारा फर्स्ट जाता है जब भी कोई हमें मैसेज करता है, वी ऑटोमेटिकली गिव देम दिस रिप्लाई, हाय, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, द कंपनी। ओके, एंड देन वी हैव रिटन हियर लाइक, हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, हमने उनसे सवाल किया, हाउ मे आई हेल्प यू। देन अगेन देर इज अ क्वेश्चन। Okay, there is a question. Are you looking for help with LinkedIn lead generation program? Okay, there is a question. ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर, ऑटो रिप्लाई के अंदर ही हम लोगों ने उससे एक क्वेश्चन पूछा है। मतलब यहाँ पे एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि ये बंदा जो हमारे पास में आ रहा है वो किस प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर आ रहा है। तो राइट नाउ, जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग इस प्रोग्राम के ऊपर अभी कुछ टाइम से ज्यादा एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट्स हमारी चल रही है। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु कॉन्टेक्ट अस कॉन्टेक्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पे इसको क्वेश्चन बना दिया कि आर यू लुकिंग फॉर एनी हेल्प विद दिस प्रोग्राम। देन उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, चूज और रिप्लाई ए और बी। ओके, एक्शन लेने को बोल रहा हूं बेसिकली मैं, कि अगर आप लिंक्डइन लीड जनरेशन प्रोग्राम के लिए कांटेक्ट कर रहे हो तो टाइप ए, बिकॉज ए ऑप्शन इज यस, और टाइप बी, नो समथिंग एल्स। अगर आप लिंक्डइन को छोड़ के किसी और चीज के बारे में मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो तो टाइप बी। इफ यू आर कॉन्टेक्टिंग अस फॉर द लिंक्डइन प्रोग्राम, टाइप ए। अब इसके बाद क्या होगा, कोई बंदा मेरे प्रोफाइल पे आया, उसने मुझे फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम समबडी मैसेजेस द कंपनी। जैसे ही बंदे ने मैसेज किया, उसको इमीडिएटली मेरे तरफ से रिप्लाई जाएगा कि भाई आप, थैंक यू, आपने हमें कांटेक्ट किया। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने हमें कांटेक्ट किस चीज के लिए किया है, पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के लिए किया है या किसी और चीज के लिए किया है। ओके, सो नाउ लेट्स से इफ somebody is here and he is looking a help with the LinkedIn program. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ए टाइप करेगा, राइट, करेक्ट, यस और नो? यस। यस। तो अब किसी ने ए टाइप किया, इसका मतलब क्या हुआ, अब वो हमसे चैट करना शुरू कर देगा। हम लोगों ने ऑलरेडी एक कॉल टू एक्शन हम लोगों ने काफी केयरफुली चूज किया है। हम लोगों ने डायरेक्टली पहले ही सेग्रीगेशन कर दिया। ओके, अगर तुम हमसे कांटेक्ट कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, फॉर दिस प्रोग्राम और फॉर समथिंग एल्स। तो इसी तरह राइट। से आप भी अपने सेगमेंट बना सकते हो, लाइक आर यू कॉन्टेक्टिंग अस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग और दिस पर्टिकुलर थिंग और दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, इस तरह से बहुत ज्यादा नीश के अंदर नहीं जाना है। लेकिन जो भी आपकी टॉप सर्विसेज होंगी, जैसे लेट्स से फॉर बी टू बी, जैसे कि फॉर मुर्तजा भाई, ओके, फॉर यू, आर यू कॉन्टेक्टिंग अस फॉर बी टू बी लीड जनरेशन और फॉर बी टू सी। Okay, so ओके। these are your two broader categories, so that you will know particularly that ये जो बंदा था मेरे पास में आया है, ये मेरे पास में बी टू बी का क्लाइंट है या ये बी टू सी का क्लाइंट है। ओके, तो इस तरह से आप एक ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करेंगे यहाँ पे। और ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको नीचे आना है एंड सबमिट। ओके, कीप इट मैक्सिमम 3600। Why we have kept it 3600? Only after minute, resubmit message only after minute। इसका मतलब ये है कि हर बार अगर कोई बंदा आपसे बार बार क्वेश्चन कर रहा है तो उसको बार बार ये ऑटो रिस्पॉन्डर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि
अभी कोई बंदा, लेट्स से 9 बजे किसी बंदे ने मुझे मैसेज किया, अब वो 9 बज के 10 मिनट पे वापस मुझे मैसेज कर रहा है, तो वापस से मैं उसको सेम चीज नहीं बोलूंगा कि आर यू लुकिंग फॉर द हेल्प विद दिस प्रोग्राम। मैं उसको वापस से ये रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। मैं इसको रिस्पॉन्ड काफी लंबे टाइम के बाद करूंगा। तो जितना लंबा टाइम मैक्सिमम हम रख सकते थे, हमने वहां यहाँ पे रखा है, ताकि इमीडिएटली वो सेम चीजें रिपीट ना करे। ओके, सो ये हमने मैक्सिमम पे रखा है, एंड सबमिट। वंस यू सबमिट इट विल स्टार्ट। तो अब जब भी कोई आपको मैसेज करेगा, उसको इमीडिएटली ये रिप्लाई जाएगा। सो दिस इज योर ऑटो रिस्पॉन्डर। अब ये आप आपके वर्किंग आवर्स चालू है या नहीं है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। जो व्हाट्सएप बिजनेस हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर वहां पे हमारे पास में दो सेटिंग्स हैं। ओके, पहला है वेलकम रिप्लाई, एंड दूसरा है अवे मैसेज। तो अवे मैसेज हम लोग कब भेजते हैं, जब हमारा बिजनेस आवर्स खत्म हो जाते हैं तब अवे मैसेज जाता है, और जब बिजनेस आवर्स चालू होते हैं तब वेलकम मैसेज जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आदमी रात को 12 बजे मैसेज करे, सुबह 7 बजे करे, रात को 4 बजे करे, या दोपहर को 4 बजे करे, किसी भी टाइम पे मैसेज करे, उसको रिप्लाई हमेशा सेम जाएगा। ओके, ताकि अगर वो बंदा उस टाइम पे अगर फ्री है, अगर वो बंदा उस टाइम पे आपसे बात करना चाहता है, तो why we should send them that we are not available right now and we will reply to you in our business hour? Why to send this message, जब हम लोग, हमारे पास में कैपेबिलिटी है उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की, उसके उसको उसका जवाब देने की कैपेसिटी हमारे पास में है। तो हम उस मैसेज को, हम उस बंदे की क्वेरीज को क्यों डिले करें, राइट। राइट। ओके, हम इमीडिएटली उसको रिप्लाई दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो ऑप्शन दिया है वो यही दिया है कि आप, कोई भी बंदा किसी भी वक्त आपको मैसेज करेगा, उसको ये एक रिप्लाई जाएगा। तो ये हुआ ऑटो रिप्लाई। अब ऑटो रिप्लाई आपने भेज दिया, अब सामने वाला जो बंदा है जिसने आपको मैसेज किया है, उसने आपको रिप्लाई किया ए और बी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बोला है स्पेसिफिकली रिप्लाई ए और बी, ये हम लोगों ने बोला है, और सामने वाले बंदे ने रिप्लाई किया ए। इसके बाद क्या, नाउ व्हाट। अगर कोई बंदा रिप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स ही वांट्स टू चैट विद अस, राइट। राइट। ओके, तो वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमारे बारे में और जानना चाहता है, या प्रोग्राम के बारे में और जानना चाहता है। सतीश, आई थिंक योर माइक इज ऑन, एंड काफी डिस्टरबेंस हो रहा है उसमें। या थैंक यू। ओके, सो ए ऑप्शन चूज किया। अब इसके बाद में हमें रिप्लाई तो देना पड़ेगा, क्योंकि बंदे ने चूज किया है ए। दैट मीन्स उसको एक्सपेक्टेशन है कि हम कुछ रिप्लाई करेंगे, राइट। सामने वाले को ये एक्सपेक्टेशन है कि हम वी आर गोइंग टू गिव देम अ रिप्लाई। तो अब रिप्लाई राइट। क्या देंगे और कैसे देंगे। रात को 2 बजे कोई बंदा आपको मैसेज कर रहा है, आपने ऑटो रिप्लाई तो दे दिया उसको। अब रात को 2 बजे आप तो सो रहे हो, रिप्लाई कौन करेगा। there has to be someone to reply to that query, right? And we are not that large organization जहाँ पे लोग 24/7 तीन शिफ्ट के अंदर काम कर रहे हैं हमारे पास में, राइट। तो देर राइट। हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ automation that should give them a proper reply about your product or services or what they are inquiring with. ओके, जो भी वो लोग इंक्वायर कर रहे हैं, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए आपको उनको रिप्लाई देना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लोग देखेंगे आज, वो है चैट बॉट, क्रिएटिंग अ चैट बॉट। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल, नो कोड चैट बॉट। आपको किसी तरह की कोडिंग या किसी तरह का कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी सिंपल से स्टेप्स आपको बताऊंगा मैं, जिसके ऊपर आप लोग क्या कर पाओगे, चैट बॉट क्रिएट कर पाओगे। आर यू रेडी, शैल वी मूव। यस। ओके, सो कम टू द चैटबॉट ऑप्शन। ठीक है, चैटबॉट ऑप्शन के ऊपर आने के बाद में, यहाँ पे आपको, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वी हैव डिफरेंट नंबर्स कनेक्टेड विद दिस।
टूल प्रोसेंडर, तो यहाँ पे ये इस तरह से मुझे अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस नंबर, ये आपको इसी तरह से ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे आएगा। ओके, देन यहाँ पे आप देखोगे इट सेज 10 आइटम्स। 10 आइटम्स का मतलब है यहाँ पे आई हैव सेट और वी हैव सेट 10 चैटबॉट्स। 10 चैटबॉट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। एंड 219 सेंट मतलब 219 बार, 219 टाइम्स दिस चैटबॉट हैज रिप्लाइड टू आवर कस्टमर्स। मतलब किसी ने क्वेरी किया और इसने उसको रिप्लाई दिया। ओके, तो आप देखिए कि हम लोग अवेलेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, लेकिन 200 बार, 200 बार किसी ने हमसे कुछ पूछा और उसको रिप्लाई दिया इस चैटबॉट ने, राइट। तो किस तरह से सेटअप करेंगे? अगेन अ वेरी सिंपल स्टेप। यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही है, आइटम लिस्ट एंड ऐड आइटम। when you initially go to item list, if you choose, right now your screen must be showing like this. You can see here, this is a number and it says 0 item and 0 cent। और अगर आप आइटम लिस्ट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप आइटम लिस्ट के अंदर आए हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ऐड न्यू। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज, सेकेंड ऑप्शन इज, अगेन मैं जा रहा हूं चैटबॉट के ऊपर और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है आपके पास में। पहले मैंने चूज किया था आइटम लिस्ट। ओके, और आइटम लिस्ट के अंदर मुझे ब्लैंक स्क्रीन आई बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी आइटम अटैच्ड, आई डू नॉट हैव एनी आइटम क्रिएटेड। ओके, आई डू नॉट हैव एनी चैटबॉट क्रिएटेड, तो वो ब्लैंक था वहां पे। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट मुझे आइटम लिस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली चूज एड आइटम। आप दोनों तरह से जा सकते हो। आइटम लिस्ट करोगे आप, सिंस वी हैव क्रिएटेड सो मेनी बॉट्स हियर, इट इज शोइंग ऑल दीज बॉट्स। अगर मैं कोई दूसरा नंबर चूज करूंगा जिसके ऊपर कोई बॉट क्रिएट नहीं किया हुआ है अभी तक, जैसा आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वो वहां पे आपको दिखेगा इस तरह से, आइटम लिस्ट, राइट। इन द Yes. आइटम लिस्ट यू विल गेट दिस ऑप्शन। First is add new and second is click to run. Right now it is stopped. Right. By default it is stopped and it says click to run. Right now if you click on this button, nothing will happen because there is no item. Okay, there is no Right. item. तो अगेन मैं जाता हूं आपको, मैं लेके जाता हूं आपको यहाँ पे where I have created several bots. Okay, so first bot, very first bot I have here is need help with this program. Okay, if you could remember, I have autoresponder set where I am giving them an option to choose A or B. Okay, if they are here for the help with, they are finding any help with this program, LinkedIn program, then they have to choose A, otherwise they have to choose B. Okay, so let's say somebody chose option A। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद में अगेन देर आर थ्री ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज एनेबल। ओके, एनेबल और डिसेबल। आप इस चैट बोट को एनेबल या डिसेबल कर सकते हो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगेन सेंड टू ऑप्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इफ यू वांट टू सेंड इट टू एन इंडिविजुअल या ग्रुप के ऊपर आप रिप्लाई करना चाहते हो या दोनों के ऊपर रिप्लाई करना चाहते हो, तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, आई एम वेरी कैटेगरिकली सिलेक्टिंग इंडिविजुअल ऑप्शन। द रीजन यू नो नाउ। द थर्ड ऑप्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन एंड इट सेज टाइप। and under type option you have again two different options. First is message contains the keyword and message contains whole keyword। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो चैटबॉट है जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं या जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ये चलता कैसे है? ये चलता है
कीवर्ड के ऊपर। कीवर्ड का मतलब होता है कि आपसे जो बंदा किसी तरह की क्वेरी कर रहा है, उस क्वेरी के अंदर आप किसी तरह का कीवर्ड सेट करेंगे। ओके। तो वो कीवर्ड अगर ट्रिगर होता है, यानी कि अगर वो जो बंदा है जो आपको मैसेज कर रहा है, उसके मैसेज के अंदर ये कीवर्ड होगा, तो ये चैटबॉट रिप्लाई करेगा, अदरवाइज उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा। ओके। राइट। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड एंड मैसेज कंटेन्स होल कीवर्ड। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर डिफरेंस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ समबडी, ओके लेट्स से आर कीवर्ड इज, जस्ट अ मिनट। ओके। जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड आप देखें, कीवर्ड के अंदर हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया है? ए। बिकॉज यहाँ पे हमें ऑप्शन हम लोगों ने दो ऑप्शन दिए थे, इधर चूज ए और बी। नाउ इफ somebody choose option A, and what he will do, he will just type A and send it to us। वो ए रिप्लाई करेगा। तो अब ए रिप्लाई करेगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैसेज कंटेन्स होल कीवर्ड एंड मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड। तो होल कीवर्ड इसके लिए मैंने रखा है यहाँ पे कि एग्जैक्टली जो जो भी कस्टमर है, जो भी टाइप कर रहा है, वो एग्जैक्टली पूरा का पूरा फ्रेज अगर मैच होता है तभी रिप्लाई देना है। ओके। जो बायर या जो भी आपका कस्टमर है, वो आपको मैसेज जब करेगा तो एंटायर जो मैसेज है वो एग्जैक्टली मैच होगा, तब ये मैसेज, तब ये चैटबॉट रिप्लाई करेगा। सो दैट इज सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या है कि बायर या आपका जो कस्टमर है, उसने एक आपको क्वेश्चन, उसने आपको एक क्वेरी लिखा। अब ये इतना बड़ा क्वेरी, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी अगर आपका कीवर्ड होगा, ओके, तो ये कीबोर्ड जो चैटबॉट है उसको रिप्लाई करेगा। तो इस तरह से ये दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ओके। तो कौन सा कब आपको चूज करना है? अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली exactly जो आपने बोला है वही आपका कस्टमर टाइप करे, वही आपका प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट या कस्टमर जो भी आप नाम देना चाहते हो, या लीड नाम देना चाहते हो आप, जो भी आपकी जो लीड है वो एग्जैक्टली exactly वही कीवर्ड टाइप करे जो आपने बोला है, और तभी आप रिप्लाई देंगे, तो आपको चूज करना है सेकंड ऑप्शन। और अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर, लीड, क्लाइंट या जो भी बंदा आपको मैसेज कर रहा है, वो पूरा उसका सेंटेंस जो है, उसके पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी आपका कीवर्ड अगर हिट होता है, तो आप उसको रिप्लाई देंगे। राइट। अब इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। ओके। लेट्स से आपका कीवर्ड है हाई। ओके। व्हाट इज योर कीवर्ड? Hi. Hi. Okay. So when somebody says you hi, this chatbot is going to give them a reply because you have chosen this option। आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो जब तक बंदा आपको HI, हाई नहीं लिखेगा, HI स्पेसिफिकल, आई एम वेरी स्पेसिफिकली एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर टू दिस, कि अगर कोई बंदा HI हाई जब तक नहीं लिखेगा, तब तक ये जो चैटबॉट है उसको रिप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर Get आपने यहाँ पे sensitive. हाई लिखा हुआ है, आपका कीवर्ड है हाई, एंड यहाँ पे आपने चूज किया है ये, ओके, अगर आप यहाँ पे ये चूज करते हो और कोई बंदा आपको मैसेज करता है, हे आई हिट द बुल्स, उसने आपको मैसेज किया किया हे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई नहीं लिखा है उसने, उसने लिखा क्या है? हे।
उसका जो अगला सेंटेंस है उसके अंदर उसने क्या लिखा है, आई हिट, हिट, ओके, एच आई, एच आई, हिट के अंदर एच आई टी आया, एच आई आया, कंजिक्यूटिवली एच एंड आई दोनों पास पास आए, इट माइट कंसीडर इट एज अ कीवर्ड, जबकि उसको ये रिप्लाई चाहिए ही नहीं आपसे, राइट, आर यू गेटिंग मी? राइट। तो इस तरह का इस तरह का केस ना हो, इससे बचने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली उसको ऑप्शन ही ये दिया है कि इधर चूज ए और बी। आप पर्टिकुलरली लिख दो ना, आपको चाहिए क्या, ए चाहिए या बी चाहिए, तो जो बंदा है वो आपको ए या बी ही लिखेगा, वो कुछ और नहीं लिखेगा। अगर वो कुछ और लिखता भी है तो आप उसको एक जनरल रिप्लाई दे सकते हो कि ओके आवर एग्जीक्यूटिव विल गेट इन टच विद यू बिकॉज योर कीवर्ड इज नॉट मैचिंग, you won't give them a reply, right? But if your keyword is matching, you will give them a reply। और वो रिप्लाई क्या होगा, अब बंदे ने चूज किया था ए, ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे कि ये जो चैटबॉट हमने क्रिएट किया है ये किस रिप्लाई के लिए किया है। तो सबसे पहला रिप्लाई था हमारा कि अगर कोई बंदा हमसे पूछता है आर यू लुकिंग हेल्प फॉर दिस प्रोग्राम, ए और बी, तो मैंने प्रोग्राम का नाम लिखा है कि इफ दे नीड अ हेल्प विद दिस प्रोग्राम। तो ये हम लोगों ने नाम दिया ताकि आप इसको, आपको पूरा ओपन करके ना देखना पड़े। जब आप आइटम लिस्ट यहाँ से देखते हो, लेट मी गो बैक, यहाँ पे जब आप आइटम लिस्ट देखते हो यू कैन सी देर आर सो मेनी चैटबॉट्स क्रिएटेड। तो यहाँ पे मुझे हर एक चीज को ओपन करके ना देखना पड़े कि किस बॉट के अंदर क्या रिप्लाई है। उस इससे आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नेमिंग कन्वेंशंस का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है, ताकि आपको देख के समझ में आए कि ये बोट क्या रिप्लाई करेगा, या ये बोट आपने किस रिप्लाई के लिए क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो आई एम एडिटिंग दिस, ये ऑप्शंस हम लोगों ने सिलेक्ट किए। नाउ इफ somebody चूज ऑप्शन ए, what reply are we going to give them? Okay, so this is the reply. Again, we are not sending any kind of media, but if you want you can send। okay, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, लेट मी चेंज यूजर चैटबॉट, ओके, नाउ लेट्स से आइटम लिस्ट के ऊपर मैं जाता हूं, एंड अगेन देर आर सो मेनी बोट्स, bot 1 2 3 4 5 6, and you can say 18 bots, bot 17 and this bot, so there are 18 bots working। अब यहाँ पे अगेन आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, लेट्स से इफ आई ओपन लेट्स से bot 10, व्हाट bot 10 मींस, bot 10 का मतलब है कोई बंदा अगर 10 टाइप करता है, ओके, और if somebody types HRC 100 or somebody types honey roasted cashew, ओके, अगर कोई बंदा टाइप करता है 1010, कोई बंदा टाइप करता है HRC 100, या कोई बंदा टाइप करता है हनी रोस्टेड केश्यू, तो ये बोट क्या रिप्लाई करेगा, तो वो बोट रिप्लाई करेगा दिस इमेज, ओके। यानी कि ये जो बोट है ये बोट पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट के लिए है। यानी कि कोई बंदा आया आपके पास में, उस बंदे ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी की, तो ये बोट क्या कर रहा है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे दिया है। इमेज के बाद में अगेन कैप्शन दैट बिलो यू कैन, बिलो इज द लिंक, यू कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड यू कैन बाई फ्रॉम दिस लिंक, राइट। ये जो बॉट है ये सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दिस इज द इमेज, दिस इज द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस इज द प्लेस वेर यू कैन बाई दिस प्रोडक्ट, राइट। तो आई एम गोइंग बैक,
चैटबॉट के अंदर आते हैं वापस। सो फर्स्ट ऑप्शन जो था हमारा, यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का इमेज इंसर्ट, हम लोगों ने किसी भी तरह की मीडिया इंसर्ट नहीं किया हुआ है यहाँ पे, because we are not giving them any kind of brochure or media or image. We don't want to give them any kind of that stuff. Now इस मैसेज के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे अगेन इफ यू रीड दिस कैप्शन, लेट मी जूम इट, इज इट क्लियर नाउ? Hmm. Okay, so let's read this. What this says: if somebody messages us and they just reply us A, ओके, उन्होंने सिर्फ ए लिखा, अब हम लोग क्या रिप्लाई देंगे, या ये चैटबॉट क्या रिप्लाई देगा? तो चैटबॉट रिप्लाई देगा, ओके, वी आर प्लीज्ड दैट वी आर प्लीज्ड टू हेल्प यू विद दिस, एंड सो हियर इज द लिस्ट ऑफ FAQs people generally have about this particular program. मतलब ऑप्शन ए था, अगर आप लिंक्डइन वाले जो प्रोग्राम है उसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, उसके लिए आप हमारे पास में आए हो, या ऑप्शन बी या किसी और प्रोग्राम के लिए आए हो। तो प्रोग्राम ए के लिए आया है बंदा, उसने ए ऑप्शन चूज किया, तो ए ऑप्शन जैसे ही आपने चूज किया, इमीडिएटली यू आर गोइंग टू गेट अ रिप्लाई, और उस रिप्लाई के अंदर अगेन देर इज सम काइंड ऑफ कॉल टू एक्शन। ओके, अब ये कॉल टू एक्शन किस तरह से डिजाइन किया हुआ है? इस कॉल टू एक्शन के अंदर हम लोगों ने डिजाइन किया है जनरल FAQs कि जो भी बंदा ए ऑप्शन चूज करता है, या जो भी बंदा हमारे पास में आ रहा है कि मुझे हेल्प चाहिए लिंक्डइन वाले प्रोग्राम को लेकर, ओके, तो जनरली जनरली पीपल आस्क अस अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द प्रोग्राम। जनरली जितने भी बार हमारा इंटरेक्शन लोगों से होता है, कुछ 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में उन्हें क्वेरी होती है, या जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, वी हैव क्रिएटेड FAQ। ओके, सो चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट टू नो अबाउट द प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे अगेन हम लोगों ने ऑप्शन दिया है, चूज एंड रिप्लाई इधर C, D, E और F। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए, पहली बार हम लोगों ने 2 ऑप्शन दिए थे, A एंड B। ओके, तो A और B 2 ऑप्शन हमारे जा चुके हैं, राइट? पुराना जो मैसेज था हमारा उसके अंदर हम लोगों ने A और B 2 चीजें यूज कर लिए। नाउ इन दिस मैसेज अगेन यू कैन नॉट यूज A एंड B। अगर आप वापस से ए यूज करोगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए हम लोगों ने क्या ऑप्शन दिया है, C, D, E और F। ए बी से शुरुआत नहीं की, क्योंकि ए और बी इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। इफ somebody टाइप्स ए, ही इज गोइंग टू गेट अ रिप्लाई, बट दैट रिप्लाई इज डिफरेंट। अगर आप वापस से यहाँ पे ए चूज करोगे तो ये क्या करेगा, अगेन इट विल गेट कंफ्यूज्ड। वो ए वाला भी रिप्लाई देगा और वो ये वाला भी रिप्लाई देगा। मतलब ए में जो रिप्लाई हमने सेट किया है वो भी रिप्लाई देगा और वो ये भी रिप्लाई देगा, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है, राइट? तो जो कीवर्ड आपने एक बार यूज कर लिया, वो कीवर्ड आपको दोबारा यूज नहीं करना है। तो ए और बी 2 हम लोगों ने कीवर्ड ऑलरेडी यूज कर लिए, नाउ वी विल यूज C, D, E और F। तो यहां पे हम लोगों ने लिखा है इधर चूज C, D, E और F। अब ये C, D और E और F जो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं अपने कस्टमर्स को चूज करने के लिए, वो है क्या? तो वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट सी मीन्स व्हाट इज द डेट ऑफ दिस प्रोग्राम। मतलब कोई बंदा आता है हमारे पास में, ही वांट्स हेल्प विद द लिंक्डइन प्रोग्राम एंड ही हैज सम क्वेरीज लाइक प्रोग्राम की डेट क्या है, या उसको पूछना है कि सेशन जो होगा वो लिंक्डइन का वो कितना लंबा होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, राइट? समवन वांट टू आस्क, इज इट लाइव और इज इट रिकॉर्डेड प्रोग्राम? ओके, इस तरह से लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ये लाइव है या रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, इसकी डेट क्या है, ये कितना लंबा चलेगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। कोई हमसे क्वेश्चन करता है कि आई डिडंट रिसीव एनी मेल फॉर द फ्रीबीज।
क्योंकि फ्रीबीज किसको मिलती है? जो पेड पार्टिसिपेंट है। जो बोनसेस हम लोगों ने वहां पे बोले हैं वो सिर्फ पेड पार्टिसिपेंट्स के लिए ही है। तो कोई बंदा हमसे आके पूछता है कि हमको तो बोनस नहीं मिला। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस अक्सर लोग पूछते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे टिप है ये, कि आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड, या आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्या जनरल क्वेश्चंस लोगों के होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एफएक्यूज। ओके। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर एफएक्यूज, ताकि आपको पता चलेगा कि लोग क्या पूछते हैं आपसे, और आपको वो रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। वाई यू आर वेस्टिंग टाइम ऑन दोज, गिविंग देम अ रिप्लाई जो कि बहुत ही जनरल जेनरिक रिप्लाईज है। मतलब सेम क्वेश्चन है, उसका सेम आंसर होने वाला है, तो आप अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करेंगे उसके अंदर? राइट। तो आपको करना क्या है? दिस इज योर होमवर्क। ओके, दिस इज योर होमवर्क। आपको करना क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ एफएक्यूज। आप काफी टाइम से अपने बिजनेसेस के अंदर हैं। आई हर्ड फ्रॉम यू गाइस दैट यू आर सिंस 2014, यू आर रनिंग बिजनेस सिंस 2014। ओके। तो इतने सालों में आठ ये कम से कम जो 10 साल हो चुके हैं अब, तो 24 में हम लोग चल रहे हैं, तो 10 साल के अंदर काफी लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, काफी लोगों ने काफी क्वेश्चंस आपसे किए होंगे जो कि जनरल क्वेश्चंस है। ओके, वो बार बार आपके सामने आते हैं। उनकी लिस्ट आप बनाएं, और वो लिस्ट आप इस तरह से इंसर्ट करें अपने मैसेज के अंदर। ओके। ये हो गया। ये एक बोट हो गया, ठीक है। अब समझो कोई बंदा टाइप करता है सी। ओके, ये हम लोगों ने रिप्लाई दिया। इस रिप्लाई के बाद में कोई बंदा टाइप करता है सी। दैट मीन्स ही wants टू आस्क, or he wants to know date of this program, right? Because what is this option C? Option C says what is the date of this program. That means he wants to know the date of this program. Then again, who will reply? ये चैटबॉट तो यहाँ पे खत्म हो गया। ओके। तो क्रिएट अनदर बॉट। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सबमिट करेंगे। एक बार आप बना देंगे, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में मैं जा रहा हूं बैक। अब कोई बंदा डेट जानना चाहता है हमसे, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? वी क्रिएटेड अ बॉट नेम्ड आस्किंग डेट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसको ओपन करते हैं। ओके। अब इसको ओपन करते हैं। अगेन स्टेटस इज एनेबल, आई एम सेंडिंग इट टू सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, एंड आई एम मैचिंग द कंप्लीट कीवर्ड। ओके। अब नाम यहाँ पे दिया है आस्किंग डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है। हम लोगों ने वहां पे बोला है चूज सी, डी, ई और एफ। राइट। तो अगर कोई बंदा सी टाइप करता है, या यू यू आर ऑन म्यूट। So basically, my question is like C should be small c only or it can be capital C? डजेंट मैटर। केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं है। ओके। या सो यहाँ पे देखो कोई बंदा टाइप करता है सी। अब कोई बंदा सिर्फ सी टाइप ना करके सी डॉट टाइप कर देता है। पर सी एंड डॉट, टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके। तो ऐसा हो सकता है, तो आपको इस तरह की पॉसिबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करते जाना है अपने पॉट के अंदर। कि अगर कोई बंदा हाई ना लिख के हे लिख रहा है, कोई बंदा हे ना लिख के सलाम लिख रहा है, कोई बंदा सलाम ना लिख के वड़क्कम लिख रहा है, पर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। चाहे वो हे लिखे, हाय लिखे, हेलो लिखे, सलाम लिखे, वड़क्कम लिखे, या जो भी लिखे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज को आपको इनकॉर्पोरेट करते हुए जाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? अगर कोई बंदा लिख रहा है सी, या कोई बंदा लिख रहा है सी डॉट, या कोई बंदा लिख रहा है व्हाट इज द डेट ऑफ दिस प्रोग्राम, एंटायरली उसने ये टाइप कर दिया। उसने ऑप्शन सी नहीं लिखा, उसने ऑप्शन सी चूज नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया? उसने पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दिया व्हाट इज द डेट ऑफ दिस प्रोग्राम। या या कोई बंदा सिर्फ लिखता है डेट,
उसने सी भी नहीं लिखा, उसने सी डॉट भी नहीं लिखा, उसने पूरा क्वेश्चन भी नहीं किया, उसने सिर्फ ये लिखा डेट। तो डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब यही है कि वो हमसे ये पूछना चाहता है इस प्रोग्राम की डेट क्या है, राइट? अगर हमने उसको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दिए और लिस्ट ऑफ क्वेश्चन के अंदर सी वाला ऑप्शन था, व्हाट इज द डेट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में वो जो बंदा था उसने हमको सिर्फ रिप्लाई किया डेट। तो ये हमको इतना समझ में आता है इस चीज से कि भाई अगर डेट लिख रहा है इसका मतलब इट इज ऑब्वियस दैट ही वांट्स टू आस्क अस द डेट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो वो डेट कीवर्ड, डेट को हमने क्या किया, कीवर्ड माना, और डेट को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। लिखना कैसे? सिंपल एच आई, जैसे आपने हाई लिखा, लेट्स से हाई इज योर कीवर्ड, तो आपने एच आई लिखा। देन इफ यू जस्ट पुट अ स्पेस, सॉरी, इफ यू पुट एंटर बटन, इफ यू हिट एन एंटर बटन, इट विल टेक इट एज अ कीवर्ड। जो भी आपका कीवर्ड है, ये आपका कीवर्ड है। कीवर्ड आपने लिखा, उसके बाद में आपको टाइप करना है एंटर। आप एक साथ में मल्टीपल कीवर्ड्स भी लिख सकते हो, उसके बीच में लेकिन आपको कोमा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, जैसे ही आप कोमा देते हो वो ऑटोमेटिकली उसको कीवर्ड ले लेता है। ओके। तो लेट्स से अगर आपके पास में कोई एक्सेल के ऊपर फाइल है या आपका वर्ड के ऊपर आपने फाइल बना के रखा है, उसमें ऑलरेडी आपने सारी चीजें मेंशन करके रखी है, यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट इट। ओके। तो ये मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ए और बी भी मैं यहाँ से निकाल दूंगा, हाई भी मैं यहाँ से निकाल दूंगा। सो दीज आर माई कीवर्ड्स। नाउ यू आर ऑन म्यूट। Uh, what if they write something else other than the keywords? How to handle that? ओके। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? उस केस के अंदर हमारा जनरल रिप्लाई होगा दैट हे, सॉरी वी कुडंट अंडरस्टैंड योर क्वेरी, वी विल कॉल यू बैक। How to set it? वो मैं आपको बताता हूँ। ओके। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब ऑप्शन सी, हाँ सॉरी, सी ऑप्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे उसको डेट दिया कि दिस वेबिनार इज शेड्यूल फॉर 29th of December एंड दिस इज द टाइम ऑफ द वेबिनार। ओके। डू यू नीड फर्दर हेल्प? अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप क्या करें, स्टार और हैश। हैश का मतलब है रिटर्न टू एफएक्यूज। ओके। और स्टार का मतलब है गो टू मेन मेन्यू। मेन मेन्यू क्या था हमारा? फर्स्ट रिप्लाई। मेन मेन्यू जो था हमारा वो था फर्स्ट रिप्लाई। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो चीजों को। तो अगर वो कुछ और लिखता है तो आप उसको सिंपली, ये जो भी आपके मैसेज होंगे उसके अंदर ये उसको रिप्लाई जाएगा कि लाइक चूज दिस और दिस। So basically, the keywords cannot be there in another bot. Same यस, keywords. यस, दैट कीवर्ड That कैन, one you should. once you have used a keyword in one bot, that cannot be used in another bot. That is one channel. You have to maintain that. The other You, one is yes, hash. you have to. Here you said hash is going to go back to the FAQ. Yes, hash is So going back to hash, the where is FAQ. hash? Hash is configured where? Yes, I am sending. So return to FAQs. Okay. Okay. उसके लिए एक और बॉट है. उसके लिए अनदर बॉट। और यहाँ पे Okay. हमारा कीवर्ड क्या होगा? ओनली हैश। इफ somebody And the same types hash, message. the message will be the same message. Understood. Understood. So So now you can see, you sure. So here is the list of FAQs. मैं उसको वापस से वहीं पे लेके आ गया जहां पे से हमने शुरू किया था। understood. Understood. ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया? पहले हमने सिर्फ 4 ऑप्शन दिए थे, सी डी ई और एफ। अगेन ऑप्शन सेम है, बिकॉज सी के अंदर रिप्लाई तो वही देने वाले हम लोग।
C के अंदर what will be our reply? We are going to give them a reply about the date of the program. So again, if somebody types C, the bot that we have created earlier for C, that will give them a reply. Now in this bot, what we have done additionally, we have additionally written this line, type G to talk to an executive. So if you have another query, okay, if you want to ask something else, just type G. That means you wants to talk to an executive. तो जब भी हमारा एग्जीक्यूटिव फ्री होगा वो आपसे बात करेगा. तो इसके लिए हमने क्या किया, अगेन टॉक टू एग्जीक्यूटिव का ऑप्शन हमने दिया है, ऑप्शन जी. लेट्स गो बैक अगेन, चेक हैव वी क्रिएटेड ऑप्शन, हैव वी क्रिएटेड अ चैटबॉट? यस, वी हैव क्रिएटेड टॉक टू एन एग्जीक्यूटिव. अब इसको ओपन करते हैं हम लोग. अगेन सेटिंग्स आर सेम. ओके, टॉक टू एग्जीक्यूटिव नाम है इस बॉट का. अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अंदर क्या है, जी. अब कोई बंदा अगर जी टाइप करेगा, दैट मीन्स ही वांट्स टू टॉक टू अस. और अगर कोई बंदा लेट्स से एग्जीक्यूटिव टाइप करता है, या कोई बंदा टाइप करता है टॉक टू एन एग्जीक्यूटिव, या कोई बंदा जी डॉट टाइप करता है, तो ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं. अब इन कीवर्ड्स के ऊपर रिप्लाई कौन करेगा, ये कीवर्ड, ये वाला बॉट रिप्लाई करेगा टॉक टू एन एग्जीक्यूटिव. अब इसके अंदर अगेन हम लोगों ने क्या किया, ओके, प्लीज वेट, we are looking for an executive available online. One of our customer success executives will be in touch with you shortly. Because now you do not have uh, a person available right now who can give them a reply. You are giving them a reply which says that one of our customer success executive will be in touch with you shortly. ये हुआ हमारा सीक्वेंस. ठीक है, अब सिमिलर काइंड ऑफ सीक्वेंस मैं आपको बताता हूं किसी और एजेंसी के बारे में. मैं आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी बताऊंगा आज. ओके, आर यू विद मी सो फार? ओके, शैल आई कंटिन्यू? Yes. Yes. ओके, सो ये हमारा सीक्वेंस था. ओके, अब मैं आपको दूसरा रियल लाइफ सीक्वेंस, एक रियल लाइफ केस स्टडी बताने वाला हूं. एंड दैट सीक्वेंस जो जो हम लोगों ने क्रिएट किया, वो सीक्वेंस, उस सीक्वेंस के जरिए जो लीड आती है हमारे पास में, यानी कि जो भी बंदा आपको मैसेज कर रहा है, वो लीड का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग रेट जो है, दैट बूस्टेड टू 45%. 45% लीड्स ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हुई है. एंड आई एम नॉट जस्ट जोकिंग. एंड द इंडस्ट्री इज रियल एस्टेट इंडस्ट्री. ओके, आप समझ सकते हो रियल एस्टेट का एक ट्रांजैक्शन करोड़ों का होता है, राइट? तो अगर एक लीड भी मेरी क्वालिफाई हो रही है, इसका मतलब है एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो जो जिस एजेंसी का मैं आपको बताने वाला हूं, उसका जो एवरेज टिकट प्राइस है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वहां का, जो स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो स्टूडियो अपार्टमेंट का कॉस्ट है 1.5 CR इंडियन रुपीज. 1.5 CR, 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज, INR. यानी कि अगर मेरी एक लीड भी क्वालिफाई होती है, तो मेरी लीड का वर्थ कितना है, 1.5 करोड़ रुपया, राइट? एंड 45% लीड क्वालिफिकेशन. नाउ यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ दिस ऑटोमेशन. ओके, आर यू रेडी? शैल आई स्विच? ओके, सो on the WhatsApp, now chatbot. Now you can see there are 22 items. The company name, okay, this is the company name, you can search it. So it's a real case study.
22 items, that means 22 chatbots have been set in this number, and 330 times it sent a reply. Okay. Now let's see their item list, what they have. So first of all, we always start with autoresponder, right? Correct? We always start with autoresponder. तो autoresponder इसका देखते हैं. Autoresponder, what autoresponder they have set? Actually, we have set for them. So what we have set? So सबसे पहले again status is enable and we are sending it to individual, no group replies. ग्रुप के अंदर रिप्लाई देना ही नहीं है हमको. Okay. Again, we are not sending any kind of media. If you want, you can very well do that, but we are not sending any kind of media. So what we are telling them, let me zoom. I think it is now clear and visible and readable, right? So what they say in the autoresponder or auto reply. So they say, hi, thank you for your interest in our exclusive properties. We are thrilled and blah, blah, blah. We have these are exceptional investment opportunities we have, and all these have, we have all these options. And then there is a call to action. What this call to action they are using, what call to action they are using? Just reply chat, CHAT, uppercase, lowercase, doesn't matter. This is not case sensitive. Okay. So if a customer replies chat, that means he or she is somehow interested in buying property or knowing about the property. Right? अगर कोई बंदा चैट करना चाहता है आपसे, इसका मतलब है ही हैज सम लेवल ऑफ इंटरेस्ट. मैं अभी नहीं जानता हूं कि उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट कितना है. ओके. मैंने उसको पहला मैसेज भेजा कि भाई थैंक यू फॉर आपने इंक्वायरी किया, ये किया, वो किया, ये हमारे पास में ये हम लोग एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज के अंदर डील करते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो जस्ट राइट चैट. ओके. एंड दिस मैसेज एंड्स. Warm regards, Maria, and the person name and the company name. So, what call to action we have used? Just reply chat. अगर बंदा रिप्लाई करता है चैट, इसका मतलब है उसको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कुछ इंटरेस्ट है. भले हो सकता है वो बायर नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. He is not there to buy any kind of property. Let's say he just wanted to have your catalog, your brochure. Okay. But he has that much interest as well. Right? एटलीस्ट इतना तो इंटरेस्ट है. मतलब जो लीड हमारे पास में आई है, वो लीड बिल्कुल बेकार लीड नहीं है कि किसी ने ऐसे ही बस फॉर्म भर दिया, उसको कुछ तरह का किसी तरह का कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, उसने बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया. ऐसा नहीं होगा. तो ये लीड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं, उसके ऊपर हम लोग इतनी बात कर रहे हैं आज. तो चैट, अगर कोई चैट लिखता है तो इसका मतलब क्या है? चैट लिखेगा तो उसको हमें रिप्लाई देना है. अब रिप्लाई क्या देंगे हम लोग? ओके. तो अगेन आइटम लिस्ट के ऊपर मैं आता हूं. नाउ इफ समबडी टाइप्स चैट, इसका मतलब है वो चैट करना चाहता है. अब चैट करना चाहता है तो सबसे पहला रिप्लाई हम लोग क्या देंगे? चैट स्टार्ट. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. ओके. चैट स्टार्ट के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है? अगेन द सेटिंग इज सेम. यू कैन सी सेटिंग इज सेम एवरीवेयर. यहाँ पे देखिए कीवर्ड. अगर कोई बंदा चैट टाइप करता है तभी ये सॉरी कीबोर्ड, ये जो चैट बॉट है वो उसको रिप्लाई देगा. क्या रिप्लाई देगा? अगेन नाउ यू कैन सी देर इज अ वीडियो अटैच्ड नाउ. ओके. अब यहाँ पे वीडियो अटैच्ड है. पिछला जो मैंने मेरा सीक्वेंस बताया, देर वॉज नो मीडिया. किसी तरह का मैं इमेज या वीडियो या ब्रोशर या पीडीएफ या वर्ड फाइल या प्रेजेंटेशन मैंने कुछ भी यूज नहीं किया था, बट दे आर यूजिंग. ओके. तो व्हाट दे आर यूजिंग अ वीडियो, and this video is about this particular property. What this property name is? Samana Barari Twin Towers. Okay. So they are featuring this property because this is let's say they have this property in their
portfolio, and this is, let's say, a hot property or hot deal, and they are featuring this property. So what they did, they attached a video of that particular property. Okay, and then again in this message, what they did, they are asking few questions at the end. They have written a complete message, and at the end again there is a call to action. अब ये कॉल टू एक्शन उन्होंने क्या लिखा है, टाइप 1 instead of A, B, C. What they are doing now, type 1, 2, 3. So if somebody types 1, that means if you are living in Dubai, type 1. If you are planning to move to Dubai, type 2. And if you are just looking for investment opportunity, type 3. अगेन यहाँ पे सेग्रीगेशन हो गया कि हमारे पास में जो बंदा आया, सबसे पहले वो कहीं ना कहीं पे इंटरेस्टेड था। अब वो जो इंटरेस्टेड था वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो दुबई में वो या तो दुबई के अंदर ऑलरेडी रह रहा है, या ही इज प्लानिंग टू मूव टू दुबई, या फिर वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। तो ये 3 ब्रैकेट के अंदर हमने कस्टमर को डाल दिया। नाउ अगेन आई एम गोइंग बैक। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यानी कि 3 और बॉट्स बनेंगे। जितने भी ऑप्शन हम यहाँ पे देंगे, ओके, राइट नाउ वी हैव 3 ऑप्शन, दैट मीन्स 3 न्यू बॉट्स हैव टू बी कॉन्फिगर्ड। अब 3 बॉट हमें कॉन्फ़िगर करना है, क्या करेंगे हम लोग, 3 बॉट बनाते हैं नए। अब पहला ऑप्शन था हमारा लिविंग इन दुबई, सेकेंड ऑप्शन था प्लानिंग टू मूव टू दुबई, एंड थर्ड ऑप्शन था हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, राइट? सो वी क्रिएटेड 3 डिफरेंट बॉट्स। नाउ लेट्स से इफ समबडी चूज ऑप्शन ए, sorry, option 1, setting is same again, keyword is 1. If somebody types 1, this chatbot is going to give them a reply. Now in this message there is no media, okay, not an issue. But here what they are saying, great to hear that you are already here. That means they are already in Dubai. Okay, and then they said about this building, then they said that if you want to explore the available units in this particular property, or you want to speak to our agent, now what will happen, 2 चॉइस हम लोगों ने यहाँ पे दिया कि आपको ये जो प्रॉपर्टी है इसको और देखना है, इसको एक्सप्लोर करना है, लाइक व्हाट आर द टाइप ऑफ यूनिट्स अवेलेबल, लाइक स्टूडियो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ओके, और you would like to talk to our customer care executive, you would like to talk to our agent। तो 2 ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे दिए, इधर एक्सप्लोर दिस प्रॉपर्टी और टॉक टू एन एजेंट। तो कस्टमर क्या करेगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करेगा। जनरली पीपल हेजिटेट डायरेक्टली कॉलिंग समवन, ओके, तो वो डायरेक्टली कॉल नहीं करते, वो डायरेक्टली ऑप्शन चूज नहीं करते हैं जब तक कि उनको जो चाहिए वो आपके पास में नहीं है, राइट? आर यू विद मी सो फार? अनलेस you have the thing that they want, they are not going to call you. So what we did, we gave them 2 options, either explore the property or call to agent, but they are not going to call to agent. That we are sure that 90% of the time they are not going to call, they are not going to select the agent option. What they are going to do, they are going to explore the property first, because they want to know that what are the available options, what are the amenities, ओके, क्या मिलेगा पर्टिकुलर मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में, या क्या इस प्रॉपर्टी के अंदर है। अगर उसको लगता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरे इंटरेस्ट की है, तो वो एजेंट से बात करेगा, वरना नहीं करेगा। तो 2 ऑप्शन है, एक्सप्लोर और एजेंट। ओके, नाउ लेट्स से अगेन गो बैक। 2 ऑप्शन थे हमारे पास में, एक्सप्लोर एंड sorry, talk to agent. So if somebody choose talk to agent, what we will do, we will give them a reply, and our keyword is agent. When they select agent, the keyword is agent, and again we are giving them a reply that okay, one of our agent will shortly be with you, और तब तक जब तक
हमारा एजेंट आपसे बात नहीं करना चाहता है, दीज आर द कॉमन क्वेश्चन एंड हेल्प पीपल आर सीकिंग। तो अगेन हमने वहां पे वो भी दे दिया कि जब तक हमारा बंदा आपसे बात करता है तब तक के लिए आप क्या करोगे, तब तक के लिए जो कॉमन क्वेश्चंस लोगों को होते हैं प्रॉपर्टी के बारे में वो आप जान लो। अगर उस तरह के कोई क्वेश्चन है तो आपको वही क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज वाई वी हैव केप्ट दिस ऑप्शन ऑफ एफएक्यू एंड ऑप्शन ऑफ हेल्प। तो अगेन यहाँ पे दो चॉइस दी, या तो एफएक्यू या तो हेल्प। आई एम गोइंग बैक। जो इसके प्रीवियस वाला चैटबॉट था उसके अंदर हम लोगों ने दो ऑप्शन दिया था, इधर एक्सप्लोर और टॉक टू एजेंट। टॉक टू एजेंट हमने देखा, नाउ व्हाट इज एक्सप्लोर ऑप्शन। तो एक्सप्लोर ऑप्शन के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, द नेम इज एक्सप्लोरिंग अवेलेबल यूनिट, दैट मीन्स एक्सप्लोर। नाउ ओपन दिस एंड यू विल सी अगेन देर इज नो मीडिया। ओके, कोई मीडिया अटैच्ड नहीं है, बट in this option, in this chatbot, again we gave them four option. Now 1 2 3 we have already used, right? Keyword 1, keyword 2, keyword 3 we have already used. So what we are doing right now, we shifted to alphabets instead of digits, we shifted to alphabets. Now type A B C or D. If you want to, if you are looking for studio apartment with swimming pool option, choose A. If you are looking 3 bedroom option with pool, choose D. ओके, तो ये इस तरह से एक्सप्लोर किया। अब समझो यहाँ पे कोई बंदा ऑप्शन सिलेक्ट करता है, लेट्स से ऑप्शन सी, 2 bedroom विथ पूल। ओके, ही इज एक्सप्लोरिंग नाउ। ओके, तो एक्सप्लोर क्या करना है, हम लोग वहां पे हम लोगों ने पूछा एक्सप्लोर, हम लोगों ने ऑप्शन दिया एक्सप्लोर। नाउ एक्सप्लोर, जब बंदा आया हमारे पास में उसने बोला आई वांट टू एक्सप्लोर, तो उसको एक्सप्लोर क्या करना है, अपने पास में क्या ऑप्शन है वो हम लोगों ने यहाँ पे, हमारे पास में जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो ऑप्शंस यहाँ पे उसको दिया कि हमारे पास में 4 ऑप्शन है, अब आप चूज करो आपको क्या एक्सप्लोर करना है। तो हम लोगों ने 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी और डी। नाउ लेट्स से somebody चूज ऑप्शन सी, तो उसको 2 bedroom वाला ऑप्शन देखना है। ओके, सो नाउ अगेन यू हैव टू सेट 4 बोट्स, राइट? 4 ऑप्शन दिए तो 4 नए बोट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। नाउ वी आर लुकिंग फॉर the bot which says 2 bedroom option, like 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom। ओके, आप देखोगे कि 4 सेट करने थे हमें और एक था स्टूडियो अपार्टमेंट। सो इफ somebody types A, that means a studio apartment, somebody types B, that means 1, C means 2 bedroom and D means 3 bedroom। so let's say somebody types C। now let's see what C option does। तो अब सी ऑप्शन किसी ने सिलेक्ट किया, इसका मतलब है ही इज इंटरेस्टेड इन 2 bedroom अपार्टमेंट, राइट? नाउ वी अटैच्ड अ इमेज। नाउ दिस इमेज इज हैविंग अ फ्लोर प्लान। ओके, लेट मी टेक यू टू दिस फाइल मैनेजर। कैन यू सी दिस image? This is the image, 2 bedroom with pool, and there is a layout, floor plan available। ओके, तो ये फ्लोर प्लान हम लोगों ने यहाँ पे दिया कि 2 bedroom आपने चूज किया, 2 bedroom का फ्लोर प्लान ये है, उसके अंदर एमिनिटीज ये है, लाइक इट्स स्पेशियस, और जो भी इसके अंदर इसके जो फीचर्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे बताए। उसके बाद अगेन वी गिव देम 2 options। again what we did, again there is a call to action, and now we gave them 2 options। first option is virtual tour और brochure। इफ यू वांट टू हैव अ वर्चुअल टूर, आपको देखना है पूरी प्रॉपर्टी किस तरह से दिखती है, राइट नाउ यू कैन टेक अ वर्चुअल टूर फ्रॉम योर होम। आप देखो प्रॉपर्टी कैसी दिखती है, हम लोग उसकी पूरी वीडियो आपके सामने बताएंगे, या आपको सिर्फ ब्रोशर चाहिए। सो अगेन टाइप VT टू गेट अ टूर, टाइप ब्रोशर टू गेट अ ब्रोशर। ओके,
Again, I'm going back. Again, we gave them two options, so that means two new bots needs to be created. Okay, अब दो bot again create करना है. So let's say if somebody asks us for virtual tour, they chose this option, virtual tour. So what we are doing in this virtual tour, we gave them a link of Google Drive because the video length is बहुत ज्यादा है. वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है. ओके, तो व्हाट वी डिड, we gave them a link that this is the link where you can go and you can check the property. किस तरह से प्रॉपर्टी दिखती है, क्या आसपास का एरिया है, क्या एमिनिटीज है, क्या स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, किस तरह के यूनिट्स अवेलेबल है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है. अगेन इन दिस मैसेज व्हाट वी डिड, वी गिव देम टू ऑप्शन, FAQs एंड हेल्प. So after choosing all these options, like सबसे पहले बंदा आया तो उसने क्या किया, they started a chat with the option chat. चैट से हमारी चैट स्टार्ट हुई. जैसे ही चैट स्टार्ट हुई, वी आस्क देम थ्री क्वेश्चन, लाइक आर यू इन दुबई, और आर यू प्लानिंग टू मूव टू दुबई, और आर यू लुकिंग फॉर अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. अब कोई बंदा, लेट्स से somebody चूज ऑप्शन बी, दैट आई वांट टू मूव टू दुबई. तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, वी have some options for you and we will help you to move to Dubai, and these are the options available within us, within our portfolio for you. और इन पोर्टफोलियो के अंदर से आपको देखना है कि आप यूनिट एक्सप्लोर करो. एक्सप्लोर करने के बाद में हम लोगों ने उसको अगेन ऑप्शन दिया, 1 2 3 4 यूनिट्स. ओके, उसमें से कोई बंदे ने कोई यूनिट सिलेक्ट किया. यूनिट सिलेक्ट करने के बाद में हमने उसको ऑप्शन दिया वर्चुअल टूर का या ब्रोशर का. उसके बाद जो बंदे ने जो भी एक्शन लिया, इधर वर्चुअल टूर और ब्रोशर, उसके अंदर हमने वापस से उसको ऑप्शन दिया, डू यू वांट हेल्प फॉर दिस, और डू यू वांट टू टॉक टू एजेंट. तो वहां पे जब बंदा, अगर कोई बंदा सिलेक्ट करता है, आई वांट टू टॉक टू एजेंट, दैट मीन्स व्हाट दैट मीन्स. नाउ आई वांट टू आस्क यू पीपल, इतनी चैट करने के बाद में आदमी ने चूज किया एजेंट ऑप्शन. व्हाट डज दैट मीन? That he has further queries which are not answered by the chatbot. Chatbot. This is one thing. And what it implies? That he is interested. That he is interested, that he is qualified. Right. Right? That lead is qualified because he chose uh, so many options. उसने काफी सारा एक्सप्लोर किया, आपसे चैट शुरू की, उसने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके देखे. डिफरेंट ऑप्शंस देखने के बाद में अब वो चाहता है कि वो आपसे बात करे. अगर बंदा इंटरेस्टेड नहीं होता तो वो आपसे बात ही नहीं करता, वो आपसे इतनी चैट नहीं करता. राइट? Right. Right. So this is how this company called Next Capital got their lead qualified to 45%. Are you with me so far? Yes. Okay. तो आज का भी थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे. जनरली वी हैड 1 hour सेशन, लेकिन कल भी हम लोगों ने 2 घंटे लिया. आज भी हम लोग इसको 2 घंटा लेंगे, ताकि जो हमारा 1 hour का सेशन था वो 3 4 दिन चलने वाला था, उसको हम लोग 2 दिन के अंदर कवर करेंगे. आर यू विद मी सो फार? शैल आई? Yeah. ओके. तो ये हुआ हमारा ऑप्शन चैटबॉट का. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारा बिजनेस प्रोफाइल. राइट? आफ्टर कंप्लीटिंग योर बिजनेस प्रोफाइल, what we have done, we have seen how to send bulk messages. राइट? बल्क मैसेज कैसे करना है, कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, कैसे शेड्यूल करना है, ये हम लोगों ने देखा. इसके बाद में अब हम लोगों ने देखा ऑटो रिप्लाई, ऑटो रिस्पॉन्डर. और ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर हम लोगों ने और क्या क्या देखा, कि हम लोगों को कॉल टू एक्शंस रखना है, एक पूरा फ्लो तैयार करना है. ओके, ये मैंने आपको स्पेसिफिकली 2 लाइव केस स्टडीज आपको बताए. पहला जो हमारा खुद का था, दूसरा हमने एक एजेंसी का आपको बताया. 2 तरह के आपको ऑप्शंस बताए. जो
एग्जैक्टली इस फ्लो के ऊपर काम कर रहे हैं जो अच्छा वर्क कर रहा है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 45% तक की लीड क्वालिफिकेशन रेट आया है. सो दिस इज अ गुड क्वालिफिकेशन रेट एंड दिस इज व्हाई आई स्पेसिफिकली चोज दिस केस स्टडी फॉर यू. ओके, तो ऑटो रिस्पॉन्डर हम लोगों को किस तरह से बनाना है वो हमने देखा, चैटबॉट किस तरह से क्रिएट करना है वो हम लोगों ने देखा. एंड इन चैटबॉट एंड इन ऑटो रिस्पॉन्डर यू हैव टू सेट अ कॉल टू एक्शन, क्योंकि अगर कॉल टू एक्शन नहीं होगा तो आपका जो कस्टमर है उसको ये पता नहीं चलेगा कि आगे बात करना क्या है. सो बेसिकली यू आर प्रॉम्प्टिंग देम that you type this and we are going to give them you a reply. तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपने पूरे एफएक्यूज पहले क्रिएट करके रखने हैं ताकि आपको उससे पता चलेगा कि आपका जो फ्लो होगा, आपका आपका जो भी प्रोडक्ट है या आपका जो भी सर्विस है उसका फ्लो किस तरह से होगा और उस लीड को क्वालिफिकेशन की तरफ किस तरह से आपको लेके जाना है आगे. ओके, क्योंकि लीड आ गई, लीड आना कोई बड़ी बात नहीं है, लीड आके उसको क्वालिफिकेशन तक जाना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो लीड तो आ जाएगी आपके पास में, लेकिन वो लीड क्वालिफाई हो भी रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक लीड क्वालिफाई नहीं होगी वो लीड कन्वर्ट नहीं होगी. तो लीड क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट. तो फर्स्ट स्टेप वही है कि आपकी लीड पहले तो क्वालिफाई हो रही है या नहीं हो रही है. अगर वो लीड क्वालिफाई ही नहीं हो रही है आपकी तो कन्वर्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है. राइट. राइट. तो आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि आपका जो फ्लो है वो फ्लो आप इस तरह से डिजाइन करेंगे ताकि वो पूरा आपका स्टार्ट पॉइंट से आगे चल के पूरा लीड क्वालिफिकेशन तक आएगा. जब लीड क्वालिफाई होगा तब जाके वो आगे जाके आपका लीड कन्वर्ट होगा. तो क्वालिफिकेशन के लिए हम लोगों ने ये पूरा चैटबॉट सीक्वेंस क्रिएट किया. ओके, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट. बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है. यहाँ पे आप लोग काफी सारे ग्रुप्स के अंदर मेंबर होंगे, राइट. कई सारे व्हाट्सएप राइट. ग्रुप आपके पास में होंगे. उन ग्रुप्स के अंदर इफ यू वांट टू सेंड देम अ मैसेज यू कैन डायरेक्टली सेंड अ मैसेज इन द ग्रुप. लेकिन काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपके इंटरेस्ट के ग्रुप्स हैं, जहां पे आपकी ऑडियंस है, राइट. आपका जो नेटवर्क है या जो भी जिस ग्रुप के अंदर आप है उसमें से कई ग्रुप ऐसे होंगे जिसके अंदर एडमिन ओनली परमिशन होंगी, राइट. राइट. यू कैन नॉट सेंड मैसेज टू दैट ग्रुप, बट but that group has some participants which are your target audience, right. तो राइट. अगर वो आपकी टारगेट ऑडियंस है लेकिन आप उनको मैसेज भी नहीं कर पा रहे हो ग्रुप के अंदर, तो आपको मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बताता हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन होगा आपके लिए. आपको आना है एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट्स के अंदर. लेट मी चेंज दिस. ओके, हम लोग आएंगे एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट्स के अंदर. अब अगेन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन आएगा सिलेक्ट व्हाट्सएप अकाउंट, क्योंकि हमारे पास में 3 नंबर है यहाँ पे. तो इसके लिए जो भी ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. एज यू सिलेक्ट, जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जितने भी ग्रुप आपने इस नंबर से ज्वाइन कर रखे हैं वो सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे. ओके, तो अब लेट्स से like this is one group. I don't know, somebody must have added me to this group. I don't know what this group is. So let's say if this is your group and this group has 1022 participants. इस ग्रुप के अंदर 1000 से ऊपर लोग हैं. और let's say these are your target audience and this is admin only group. You cannot send message to this group. तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ सिंपली इसको डाउनलोड करना है. जितने भी पार्टिसिपेंट इस ग्रुप के अंदर हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट इस ग्रुप के अंदर है उन सभी के लिस्ट आपको मिल जाएगी. तो अभी जैसे मैंने डाउनलोड किया, नाउ लेट मी ओपन दिस.
तो ये एक CSV फाइल हमारे पास में आके रेडी हुई है यहाँ पे। इसको ओपन करते हैं। ओपन, सॉरी, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट। लेट मी चेंज द स्क्रीन। तो ये जूम में कर रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज द आईडी, दिस इज द यूजर। यूजर का मतलब है ये नंबर है, नंबर दिस 1022, 1022 लोग थे उस ग्रुप के अंदर। नाउ लेट्स सी whether this file has 1022 numbers. See the count. So we extracted all the numbers. So basically you can build your list like this. अगर आपके पास में ऐसे ग्रुप्स हैं, ओके, तो और उन ग्रुप्स के अंदर अगर आपके आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो आपको करना क्या है, उस ग्रुप का डेटा आप निकालेंगे। ग्रुप का डेटा निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जो लिस्ट हम लोगों ने कॉन्टेक्ट लिस्ट पहले पिछले सेशन के अंदर देखा था, क्योंकि जब हम लोग बल्क मैसेज करने जाएंगे तो हमारे पास में सबसे पहले कॉन्टेक्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्ट ही नहीं होगा तो आप मैसेज किसको करोगे, राइट? तो वो मैसेज, वो नंबर्स आपके पास में कहां से आएंगे? सो दिस इज वन ऑफ द वे टू गेट योर टारगेट ऑडियंस। सो अगेन, प्रो टिप, first pro tip is you need to join as many group as you can which has your target audience. ओके, वही ग्रुप ज्वाइन करो जिसके अंदर आपकी टारगेट ऑडियंस हो। कई सारे ग्रुप्स आप ज्वाइन करो, जितने हो सकता है उतने करो। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो वार्म होता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जितने ज्यादा मैसेजेस आएंगे जाएंगे, उससे वो आपका व्हाट्सएप वार्म होगा, और आपकी जो कैपेसिटी है मैसेज भेजने की वो बढ़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के ऊपर जब आप भेजना शुरू करते हो, तो व्हाट्सएप के जो अल्गोरिदम्स है, जो सिस्टम है, वो आपको कैच करता है कि अचानक से इतने मैसेज क्यों जा रहे हैं, या अचानक से मैसेज क्यों आ रहे हैं। तो जब आप इतने ग्रुप्स के अंदर होंगे ऑलरेडी, इतने मेंबर्स, इतने सारे मेंबर्स होंगे और इतने ग्रुप्स के अंदर आप होंगे, तो काफी सारे मैसेज आपको आएंगे और जाएंगे। तो आपका जो नंबर है, उसका जो ट्रैफिक है, वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आप मैसेज भेजना शुरू करेंगे, तब सर्वर को ऑलरेडी पता है दैट दिस नंबर हैज हाई ट्रैफिक, तो वो एकदम से आपको ब्लॉक नहीं करेगा। ब्लॉक कब होता है? जब आपका नंबर नया है और एकदम से उसके ऊपर ट्रैफिक आ गया। एकदम से ट्रैफिक कैसे आया? क्योंकि आपने एकदम से मैसेज सेंड करना शुरू कर दिया। तो वो एक सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर आप लोग आ गए, और सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर आने के बाद आपका नंबर क्या करेगा? व्हाट्सएप बैन कर देगा। ओके, तो ज्वाइन एज मेनी ग्रुप एज यू कैन, और वही ग्रुप ज्वाइन करो जिसके अंदर आपकी टारगेट ऑडियंस है। वो ग्रुप आपको ज्वाइन इसलिए करना है ताकि आपके पास में उन ग्रुप्स का डेटा आ सके। वो वो ग्रुप जो भी आप ज्वाइन करेंगे, अगर वो एडमिन ओनली ग्रुप से, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हम ग्रुप में भले मैसेज ना कर पाए, लेकिन हम इंडिविजुअल तो मैसेज कर ही सकते हैं उनको। हमारे पास में उन सारे मेंबर्स का डेटा है, राइट? Right. So this is how you can build your list. Okay. Now there is one more thing left in this tool, which is change. Let me change my screen.
Okay. Can you see my screen? Clear? Visible? Okay. So अगला जो ऑप्शन है वो है एपीआई. ओके. जैसे जो व्हाट्सएप एपीआई, जो ऑफिशियल एपीआई है, जिस तरह से ऑफिशियल एपीआई वर्क करता है, यानी कि इस पर्टिकुलर टूल को आप अगर किसी और सॉफ्टवेयर के साथ में कनेक्ट करना चाहो, या लेट्स से आप अपनी वेबसाइट के साथ पे कनेक्ट करना चाहो, तो यहाँ पे एक एपीआई कोड हम लोगों ने दिया हुआ है. यूजिंग दिस एपीआई, if you are having a knowledge of how coding is done, और if coding, आपका कोडिंग का नॉलेज है अगर आपको, या if you have some person available with you who can take the charge of coding, और अगर वो आपका सिस्टम, आपका जो वेबसाइट है या आपका कोई सीआरएम सिस्टम है, अगर उसके साथ में अगर आप इस सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहो, दैट कैन बी पॉसिबल. Let me give you a live example. Okay, so for example, uh, is it visible? Can you see my screen? Google. No, I am on my website. Yeah, okay. Okay, so this is my website bizomatic.in. Okay, अब इस bizomatic के ऊपर what we have done, we have created a tool. तो जब भी हम लोग किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं, सो व्हाट वी डू जनरली, जब हम लोग कॉन्टेक्ट्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम वेयर वी कैप्चर पीपल्स इंटरेस्ट, वी कैप्चर लीड्स. सो हाउ वी कैप्चर लीड, यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्म दिया हुआ है. नाउ लेट मी फिल दिस फॉर्म. सो लेट्स से मुर्तजा. Musama, what is your phone number? 95940 95940 33939. 33939. And what is your email ID? Brief us. BRIEF art. Brief us Okay. Is at it the rate. correct? At the rate. No, I'm not able to see. One second. No, brief us, not art. Okay. US. Brief us. Okay. Brief us. Okay. At the rate. The artwork. The artwork. .in. .in. Works. WS. Works. Okay. Is it correct now? Yeah. Brief us at the rate the artworks.in. Right. And the company name is the The artwork, artwork. right? The Right. artwork. And the event. सो बेसिकली हम लोगों ने ये एक तरह का टूल क्रिएट किया हुआ है विच डायरेक्टली वर्क्स ऑन आवर वेबसाइट. और जब भी हम लोग किसी इवेंट के अंदर जाते हैं, या कोई भी नेटवर्किंग इवेंट होता है, या कोई दूसरी तरह का जहाँ पे भी इवेंट होता है, जब हम वहाँ पे जाते हैं, जब हम हमारा विजिटिंग कार्ड शेयर करते हैं लोगों के साथ में, नेटवर्किंग करते हैं, व्हाट वी डू नॉट जस्ट टेक देयर कार्ड, वी डायरेक्टली एंटर देयर नंबर हियर, so that it creates a lead in our system, and it immediately sends them a WhatsApp message. So the event is LIAIWA special. ओके. सो बेसिकली ये पर्सन नेम, नंबर, ईमेल, कंपनी का नाम क्या है बंदे का, और
किस इवेंट के अंदर हम लोग उससे मिले। कनेक्ट नाउ। ओके, नाउ Mustafa, you must have received a message from my number On WhatsApp? on WhatsApp. Yes, Yeah. Yes, I have. right. So it says, Yeah. it was great meeting you at this particular event. Myself is Ali Akbar and I am from this company, and you can Right. book a 30-minute free strategy call with me. So this is Right. how you received a message immediately with this, with the help of the API. Now this is through the API, because Right. we are not working inside the tool. यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया. आई एम राइट नाउ ऑन माई ओन वेबसाइट. तो यहाँ से मैंने क्या किया, यूजिंग एपीआई, बाय कॉलिंग एपीआई फंक्शन, वी क्रिएटेड अ टूल. एंड जब भी हम लोग जाते हैं तो इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट कैप्चर कर सकते हैं. तो ये एक फंक्शन हुआ. इस तरह के और भी फंक्शंस पॉसिबल हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, let's say somebody came to your website, they gave you an order on your website. Now you want to give them an order confirmation message, right? जैसे कि आप लोगों ने कई वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, लाइक let's say you bought something on Myntra or Amazon or let's say Flipkart, or let's say any other website, any other e-commerce giants, जो भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वहां से जब आप कोई चीज परचेस करते हो, यू इमीडिएटली गेट ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, राइट? सो दिस कैन बी Right. डन यूजिंग द एपीआईज. एंड तो ये आपको यहाँ पे करना होगा. वी डू प्रोवाइड दिस सर्विस ऑफ इंटीग्रेशन, बट that is not covered here, because that is a chargeable service, but that is a one time, you have to pay a one time charge for that. But yeah, if you have a capacity, or let's say if you are a coder, आप खुद अगर कर सकते हैं, so you can do on your own. We have provided entire API documentation here. तो आप इन डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके आप खुद भी अगर चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ लीड फ्रॉम एनी सोर्स. अगर आप इसको अब अगर आप देखोगे तो आप अपना ईमेल चेक करिए. यू मस्ट हैव रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम अस. ओके, तो आप अपना ईमेल चेक करिए, आपको ईमेल भी आया होगा. सो दिस इज हाउ द एंटायर सिस्टम इज वर्किंग. Okay. So can we go through this? Sorry. Can we go through this once again? How to do it in our system? How to implement this? Okay, so to implement such a kind of system, or to build such kind of system on your website, or on any, or if you want to connect your WhatsApp to any third party services, third party websites, or let's say if you want to have it in your CRM, so आपको करना क्या है? There is an option of API. So basically this is entire documentation, API documentation that we have given with your unique token. ओके, तो ये पूरा एंटायर हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है. इस एपीआई का यूज करके जो सिस्टम अभी हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने आपको जो लाइव दिखाया, लाइक इफ वी आर गोइंग टू एन इवेंट एंड वी आर कैप्चरिंग पीपल्स इंटरेस्ट, okay, we are capturing leads. So this is how we capture leads. So if you want to have similar kind of system, or let's say if you are into or if you have a website where people can order something and you want to give them order confirmation, so you can call these API to send them immediate message, immediate WhatsApp message. फॉर एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. जब आप लोगों ने इस पर्टिकुलर वेबिनार, इस पर्टिकुलर सेशन के लिए जब आप लोगों ने रजिस्टर किया होगा फर्स्ट टाइम, व्हेन यू सो द एड, okay, you filled a form on our website and you immediately got a message from us that you have registered, something like that, right?
Yeah. So that is happening through the API, that is working through the API. So you can have a system. So if you can do it with somebody, let's say if you have connections, they can build for you, you can do. And if you want us to do, we can also help you with this. So these are the functions that you can perform in this tool. Okay, are you with me so far? Yeah. Yeah, yeah. If I want to connect with you guys to get the service done, how is that? या that we will talk. हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर इस सेशन के बाद में. If you have your website and you want to connect it with your website, or let's say if you have a CRM system and you want to connect it with your CRM system, we can provide you entire system. This is a one-time charge, and then you have this tool. It will work. You don't have to pay or subscribe anything. Okay, so any questions till now? No. Okay, so shall we conclude this session for today? Yes. Okay, so thank you, Musabhai, and thank you, Satisha, for coming here in the session. And okay, so Sure. Thanks a lot, sir. thank you. Thank you Bye. so much. Bye. Bye bye.